What is your first priority? Think about it. Your first priority to get a degree, probably. Secondly, get an internship, a paid one. And lastly, get a job. That's what you're looking for. That's why you're sitting here. And right now, the tech is changing. Tech is changing at highest speed possible. And me, from the background itself, I can surely say there are few things, if you understand them right, you're gonna be having an exceptional advantage over the people who are not sitting here and not listening to this. So are you ready for this? Yes or no? Yes or no? Yes. Damn yes. So let's get started with the session, and we start with hard work. Have you heard of this word? Hard work karo. हर अमीर आदमी क्या बोलता है? Hard work करो. But does it make sense? Hard work तो भाई मजदूर भी करता है. He is probably getting 300 rupees per day. So hard work is an incomplete sentence. So how many of you have passed class 10th? Just checking. Okay, you all have passed class 10th, right? Confident, huh? Done. So in class 10 there is a concept called scalar quantities and vector quantities. You know about it? Yes. So scalar quantities are the ones which we only have magnitude. And vector quantities are the ones we have magnitude plus direction. That's so when top of the line people say do hard work, like think of any YouTuber, think of any top content creator, think of Adani or someone Ambani. What he or she will say? Do hard work, but that's a scalar quantity. You're understanding? Even if you do hard work, in a wrong direction, you will end up being a laborer who is barely surviving hand-to-mouth situation. So now we have to think what is missing. We have to think in vector quantities. Hard work meant nothing if your direction is not right. You can do as much as you want. You can get 10 CGPA. I'll give you an example. Does 10 CGPA promise you a job, yes or no? That's a classic example of hard work. You're doing something. You're not sleeping the whole night. You're working hard. You're giving exams. You're getting a degree. You're getting a 10 CGPA. But it doesn't make sense in real world because it didn't get you where you wanted to be. And that's a job. So from this point itself, rather than thinking as a scalar quantity, our life, we start thinking in terms of a vector quantity. Before thinking what to do, we will think why I'm doing it, and from doing this, where I want to go. You're understanding? So we are sorted with one fact, and we all understand this, that rather than scalar quantity, we will think in vector quantity. Now, you will ask me, Manav, I understand. You're good in understanding. Huh? But could you please also tell me what is that vector quantity? What is the direction that me as a college student, maybe in first year, second year, or third year, should run behind, or maybe jump far to get that dream job, or probably get a breakthrough in the career I have? How many of you feel pretty sad at 3 AM at a night, staring at the wall thinking, मेरा कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? हाँ, किसी को नहीं लगता? लगता है? Okay, there are many. हाँ, probably सबका सब कुछ हो सकता है. ठीक है? Me at 22 given my second TEDx. You being in college, you can get an internship. You can get anything you want. So, what is the next wave of AI? I'll talk about tech now. We understand the concept, we understand the philosophy. Now we'll talk about tech. So I came from a tech background. I'm a machine learning engineer by profession, used to be, and I'm known as TensorBoy. Over Instagram, I create content to help with AI and all. So based on that understanding, here's a piece of advice. In AI, there are two things. How many of you know what is B2B and B2C? B2B means business to business. B2C means business to customer. Perfect. So business to business and business to customer. Right now, the top companies are in AI are business to customer. Think into it. Lovable, Bolt, Perplexity, OpenAI, all are mainly B2C companies. They started with B2C. Now they are also doing B2B, but उनकी start किससे हुई थी? Getting to a customer. अब OpenAI के लिए क्या है? Customer, right? So the insight is
हमने टॉप एआई बना लिया, हमने बहुत रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, हमने बिलियंस डॉलर की फंडिंग उठा ली, बट एक नुआंस है जो इस पूरी सिचुएशन में मिसिंग है। वो ये है कि आने वाले 2 सालों में इसे संभालेगा कौन। आप सोच के देखो, आंखें बंद करोगे और गूगल पे सर्च करोगे तो आपके हर काम के लिए प्रोबेबली एक नहीं 4 एआई सिस्टम्स मिल जाएंगे, 4 एआई कंपनी मिल जाएंगी, है ना। बट आने वाले 2 सालों में इसे संभालेगा कौन। एंड देयर इट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर तुम अभी इस कॉलेज में हो एंड यू वांट समथिंग टू डाइव डीप इन एंड यू वांट मी टू गेट यू दैट, जिससे probabilistically, statistically, we all are engineers, right? We believe in numbers more than people. So statistically आने वाले 2 साल में तुम्हारा फायदा हो। So अब हम बात करते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इस मोमेंट पे, which works as a second car for all the college students sitting here. There are only mainly 2 things: infrastructure and distribution. मैं समझाता हूं कैसे। सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, ओपन एआई बन गई, परप्लेक्सिटी बन गई, लवेबल बन गई, बोल्ट बन गई, और भी बन रही हैं। सबको चलने के लिए एआई चाहिए, एआई को चलने के लिए जीपीयू चाहिए। सबको पता है जीपीयू क्या होता है? एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सीपीयू का भाई होता है, ठीक है। अब जीपीयू को बनाने के लिए सिलिका चाहिए, सिलिकॉन, और जीपीयू को चलाने के लिए पानी चाहिए। इतना पानी नहीं है हमारे पास। हम वो लोग हैं जो पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर रियलाइज करते हैं हमारी बॉडी की इतनी ताकत ही नहीं थी। यही हाल इस टाइम एआई का है। एआई में सारी कंपनियों ने रेस लगाई, हमने बहुत सारा जीपीयू, बहुत सारा कंप्यूट, सब कुछ लगा दिया, और अभी 6 महीने बाद हमें रियलाइज होगा भाई इतना तो था ही नहीं हम पे, अब क्या करें, अब क्या करें। तहां वहां पे तुम आओगे, तुम कहोगे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? जोर से बोलो। डैम, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सोच के देखो, एक घर है जो काफी बड़ा है, जिसमें काफी ईंटें लगी हैं, तो तुम्हें अगर उसमें ईंटें कम करनी है तो सबसे पहले तुम क्या उसके पिलर सही करोगे ना, यू विल फिगर आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक शब्द में कहते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट इट डाउन, लिखो, क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। सो अब इस शब्द को समझते हैं, एंड तुम्हें ये चीज पढ़नी है, और ये एक धमकी है छोटी सी, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन। किसने किसने लिख लिया? रेज अ हैंड। गलत स्पेलिंग लिख लो, गूगल कर लेना, ठीक है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन। सस्ती भाषा में समझाता हूं। किसने किसने GTA 5 खेला है? किसने किसने GTA 5 खेलने का सपना देखा है? हाँ, अब देखो ज्यादा हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हें GTA 5 एक अपने i3 वाले डेल खत्म होते लैपटॉप में चलाना है तो कैसे चलाओगे? कभी सोचा है? नहीं चला पाओगे, लैग हो जाएगा, फूक जाएगा भाई। हम कैसे चलाएंगे? हम चलाएंगे इसी टेक्निक से। बस आंखें बंद करो और ये सोचो कि GTA 5 को हमने इंटरनली ऐसा मोल्ड कर दिया कि वो सस्ते रिसोर्स पे चल जाए। इसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। अब कौन कौन क्वांटाइजेशन समझ गया? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड। हैवी चीजों को कम रिसोर्सेज पे चलाना, ठीक है। तुम्हें इंटीजर रेट पता है क्या होता है? इंटीजर रेट डेटा स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा? इंटीजर रेट नहीं पढ़ा? हाँ, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई, ओके, ठीक है। तो हम क्वांटाइजेशन सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले टाइम में रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। इतनी तेजी से जो हम स्केल कर रहे हैं एआई में, हमारे पास इतने जीपीयू होंगे ही नहीं, चलाएंगे कैसे हम? तब आएगा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ आदमी, वो कहेगा मालिक मुझे दो पैसा, मैं बताता हूं कैसे होता है ये। वो हैवी सिस्टम्स को कम रिसोर्सेज पे चला सकता है, और ये टेक्निक उसे 2 साल पहले एक बंदा टेडएक्स पे बता के गया था, है ना। सो इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कैन बी एडवांटेजेस फॉर यू। तो लर्न एआई, लर्न डीप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एक चीज है, अगर तुम ध्यान दे पा रहे होगे कि एक घर की ईंटें कम करनी है बिना घर को छोटा करे, समझ रहे हो? हमें एआई को कम रिसोर्सेज में चलाना है बिना उसकी एक्यूरेसी मैट्रिक्स को कम किए। इसके लिए तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो एआई चल कैसे रहा है या वो घर बना कैसे। तो यहां पे अगर तुम क्वांटाइजेशन में जाते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि भैया मैं 2 महीने ऊपर ऊपर से पढ़ के भगवान बन जाऊंगा।
कुछ नहीं होगा. It needs 6 to 10 months of dedicated attention and put together thoughts. तभी तुम पढ़ पाओगे. तुम समझ रहे हो? तुम इंजन पढ़ रहे हो, इंजन बनाना है, छोटी जगह में बड़ा इंजन लगाना है. कैसे? जब इंजन की हर एक चीज पता हो हमें. अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं. सब रेडी हैं दूसरी के लिए? दूसरी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा. डिस्ट्रीब्यूशन. किसी को पता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचना. डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही फैंसी शब्द है, एक बहुत ही छोटी चीज का. क्या? बांटना. परफेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन मैटर टुडे? एक कहानी सुनाता हूं. किसने आंखें बंद करो, बचपन में बड़े होते टाइम जीमेल या फेसबुक का एड देखा है, जिसमें फेसबुक का कोई बंदा आके तुम्हें बोल रहा हो कि सर फेसबुक डाउनलोड कर लीजिए या जीमेल डाउनलोड कर लीजिए. किसने देखा? किसी ने नहीं देखा. किसने नहीं देखा, तब भी वो जीमेल और फेसबुक यूज कर रहे हैं. बताओ, गिव मी अ रेज ऑफ हैंड. अब सोच के देखो, हमने बड़े होते हुए कभी जीमेल या फेसबुक का ऐड क्यों नहीं देखा? कुछ तो रीजन होगा. रीजन मैं बताता हूं. आज से 10 साल पहले चीजें बनाना कठिन था. क्या करने कठिन था? जोर से बोलो, क्या करना कठिन था? चीजें बनाना, बिल्ड करना. तो अगर तुम एक शहर में हो जहां पे एक अमरूद का बहुत बड़ा बगीचा लगाना कठिन है, तो क्या तुम्हारे लिए अमरूद बेचना कठिन होगा या आसान होगा? आसान होगा. क्योंकि कठिन क्या है? बगीचा लगाना. कठिन क्या है? जीमेल बनाना. कठिन क्या है? फेसबुक बनाना. आसान क्या है? बेचना. आसान क्या है? बेचना. पर अब साइकिल घूम गई, चीजें बदल गई. अब क्योंकि हमारे पास एआई है, तो अब हमारे लिए आसान क्या हो गया है? बनाना. अब हर कोई एक वीकेंड में बैठ के 3-4 प्रॉम्प्ट लिख के एक सॉफ्टवेयर बना सकता है. समझ रहे हो? अब हर कोई 48 घंटे में एक बगीचा लगा सकता है. तो सोच के देखो, कंपटीशन बढ़ गया. हर कोई बगीचा लगा सकता है. तो अब उस शहर में जब हर कोई बगीचा लगा सकता है, तो कठिन क्या हुआ? बेचना. इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? कंटेंट क्रिएटर्स. वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं. दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन. तुम हमेशा सोचते हो कंटेंट वाले को यार इतना पैसा देता कौन है? क्यों देता है? क्योंकि बनाना आसान हो गया है. गेम बचा है बेचने का. जो अच्छा बेच लेगा उसका चल जाएगा. और जो अब तुम्हें करना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाना. कैसे? 3 चीजें फॉलो करनी है. पहला, जिसने अभी तक नींद से नहीं उठा है, जो इंसान कॉलेज में आने के बावजूद, उठ जाए और लिंक्डइन करके एक ऐप होता है नीले रंग का, उसे डाउनलोड कर लो. आई एम गिविंग यू बेसिक टिप्स. गेट ऑन सोशल्स. गेट ऑन सोशल्स. याद रखना, जो दिखता है वही. I get my first internship because I was active and I'm putting कि आज मैंने ये करा, आज मुझे इतने मेडल मिले, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ. अगर मैं ये डेली बेसिस पे करता हूं, सर ने एक बात की थी, एसिमेट्रिकल. किसी को याद है? एसिमेट्रिकल आउटपुट या एसिमेट्रिकल रिटर्न्स. किसको याद है? एसिमेट्रिकल रिटर्न्स की यहां बात हो रखी है, सर ने बताया था. एसिमेट्रिकल रिटर्न्स क्या होता है? जॉब नहीं होती. जॉब में क्या होता है? तुम एक्स करोगे, तुम्हें वाई मिलेगा. फिर तुम अगले दिन जाओगे, एक्स करोगे, वाई मिलेगा. तीसरे दिन तुम डिप्रेस होके एक्स करोगे, फिर वाई मिलेगा. चौथे दिन तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, फिर कहोगे जॉब छोड़ देते हैं. ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा. अब एसिमेट्रिकल रिटर्न्स ये होता है कि तुमने आज एक्स करा, तुम्हें कल 0.2x मिला, परसों x मिला, और उसके अगले दिन 100x मिल गया. तुम्हें नहीं पता कि x के बदले तुम्हें कितना x मिले. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तुमने एक वीडियो बनाई, तुमने मेरे साथ फोटो खिंचाई, इन लोगों के साथ फोटो खिंचाई, इनको टैग करा और लिंक्डइन पे डाला. तुमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूज करा अपने फायदे में. समझ रहे हो? तुमने इस सेशन की एक वीडियो बनाई और डाली कि हे, I have paid this money and I have taken this session and here are 3 things I have learned. This is distribution. तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पोस्ट नीचे सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है या फिर ऑफिस में बैठा अदानी. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. समझ रहे हो? मैंने इस पॉइंट तक 6 कंपनियों में मैं काम कर चुका हूं एज अ एआई इंजीनियर, एंड सारी कंपनीज मैंने ऑफ कैंपस ली है. एक भी कॉलेज के भरोसे नहीं. क्योंकि तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, इस कॉलेज में हो सकता है एक बैच में 1500 बच्चे हो, एवरेज 1000-1500 होते हैं. ऐसे पुणे में, नागपुर में 20-30 कॉलेज हो सकते हैं. दिल्ली एनसीआर और सब जोड़ दें 3-4 हजार कॉलेज हो सकते हैं. काफी बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां पे एक बैच में 45,000 बच्चे हैं.
तुम compete कैसे करोगे? और तुम सिर्फ इस भरोसे बैठे हो कि हमने फीस दे दी है, हम एक कॉलेज में आ गए हैं, अब कॉलेज वाले जाने, हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जब कॉलेज वाले जानने में आएंगे ना, तो पूरी जनता में से वो 50 बच्चे होंगे, वो 50 शक्लें होंगी जो कुछ अच्छा करके निकल रही होंगी, और उसमें कॉलेज की गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। यू हैव टू सेव योरसेल्फ। तो जो 2 चीजें हमें करनी है, पहला हम सीखेंगे एआई, ठीक है? I'll give you basic things. Try to learn AI, mainly a thing called quantization. वो अभी पॉपुलर नहीं है, वो आने वाले 1 साल में पॉपुलर होगी। और मैं चाहता हूं जब वो गाड़ी तेज दौड़े तो तुम अपनी गाड़ी लेके एकदम उसके पीछे प्रेशर दबाने के लिए बैठे हो, कि जैसे ही वो गाड़ी बढ़ी वैसे ही खींच दी भाई हमने। सेकेंड चीज, डिस्ट्रीब्यूशन। डू एनीथिंग यू वांट, बट एवरी डे इफ यू आर शाय, राइट कंटेंट, ट्विटर या लिंक्डइन। If you are extrovert, create videos. Either you can be at Instagram, YouTube. फर्क नहीं पड़ता वीडियो कितनी क्रिंजी है, because before getting good into something, तुम्हें उसमें बुरा होना होता है। और ये मैं नहीं, ये साइंस है। तुम किसी चीज में झटके में अच्छे नहीं हो सकते। पहली बार मैं भी स्टेज पे चढ़ता था, मेरे पैर ऐसे ऐसे होते थे। आप अच्छे नहीं हो सकते, because you are born as a voice. अब जब पैदा होते आपको चलना भी नहीं आता। तो इफ यू आर थिंकिंग जस्ट बिकॉज ये वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल हम कंटेंट नहीं कर रहे इन एनी फॉर्म, यू आर लूजिंग बिलियंस एंड बिलियंस। फाइनल सेंटेंस ये है कि तुम्हें एक्शन क्यों लेना है, क्योंकि वर्ल्ड, दुनिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलती है। उसमें बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो तुम्हारे एक्शंस को बहुत ज्यादा आउटकम देती है। सो दिस इज माई टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस क्लोज।